और आज की क्लास 1 घंटा ही तकरीबन हो पाएगी क्योंकि आज डॉक्टर खान की क्लास है। तो प्लीज़ हैंड रेज कर लें, बाकी कैंडिडेट भी मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें। सर मेरे ख्याल है स्टार्ट कर लेते हैं। जी जी मैडम। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट कैंडिडेट। डॉक्टर आयशा मैडम, आप पहला केस ले जी लें। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। I'm provided with chest X-ray, frontal projection of mature skeleton, in which I can see there's an ill-defined opacity is noted in the right middle and left lower zone that is abutting the right heart border and also the diaphragm. And I can see also there is a apical right side apical pleural thickening is also noted. The cardiac slit is slightly enlarged with the right CP angle is blunt, likely fusion. There is madam ये जो है that is an opacity that is right perihilar increased lucency और ये एक उसके अतराफ में opacity है increased central lucency surrounded by opacity. कितनी सारी ल्यूसेंसी जब आ रही हो एक हेमीथोरेक्स में और ये रिब्स भी टूटी हुई हैं और सबको हाँ, sorry, I cannot see the sorry pulmonary markings. That's pneumothorax I can see, and the cause of the pneumothorax is visible. The posterior can count these fourth, fifth ribs are broken, and I cannot see any pneumomediastinum. Yeah, I can see surgical emphysema and pneumomediastinum slightly वो ऊपर लग रहा है कि वो aortic great vessel से ऊपर जा रहा है along with the न्यूमोथोरेक्स बता दिया तो फिर आपने क्या बताना होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है? First of all, I will call to the emergency department and report it in my report also, as this is an emergency, to pass the tube. Tension pneumothorax. Sorry, I have to tell the tension pneumothorax, but in this I cannot find any mediastinal or tracheal shifting. It might be. pneumothorax आ रहा है ना इस इधर स्ट्रंग जो है वो रोटेटेड टुवर्ड्स हाइलम है और हम ये भी रूल आउट नहीं कर सकते जैसे फॉलन लंग साइन होता है एक, क्योंकि बिल्कुल इसी तरफ ही आ रहा है, ठीक है, और कॉज इसका एविडेंट है। अच्छा, जब आपको रिफ्रैक्चर ना मिल रहा हो और न्यूमोथोरेक्स मिल रहा हो तो आपको पता है ना एंगल ऑफ रिब कॉमनेस्ट साइड है, तो ये वाला जो फंक्शन आ रहा है ना, आई होप अगर आप लोगों को पॉइंटर मेरा नजर आ रहा है तो ये जो ये है ना जंक्शन एंटीरियर रिब्स का, यहाँ पर जैसे एक ये थोड़ा सा आपको नजर आ रही है रिब, ठीक है, तो एंगल्स ऑफ रिब आप देख लिया करें, वहां एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर आपको मिल सकता है। यानी जब न्यूमोथोरेक्स है तो आपने उसकी कॉज फाइंड आउट करनी है, और यानी कोई बुलेट हो सकती है, कोई आपको फॉरेन बॉडी मिल सकती है, कोई एविडेंस ऑफ सर्जरी हो सकता है, ठीक है, ट्रॉमा का कोई एविडेंस हो सकता है, यानी कॉज ढूंढना है आपने और ये बताना है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये दो केसेस आप ही अटेम्प्ट करेंगी, वो भी ट्रॉमा के हैं, ठीक है। मैडम नासमा, मैडम ये इस केस में टेंशन न्यूमोथोरक्स है इस पेशेंट में? नहीं सर, उसमें टेंशन न्यूमोथोरक्स नहीं। अच्छा, ठीक है। I am provided with the CT sagittal deformated image of chest, and it is a bone window, and I can see there is a compression fracture of the LV LV1 with lucency, air lucency also seen in it. And also I can see the anterior wedging fractures of other thoracic vertebrae in the upper also. Apart from this, I can see there is a fracture line noted in the manubrum, sternum, and the xiphoid process. So based on these fractures of the manubrum, sternum, and this vertebrae fractures, however, this is not extending into the posterior
components, posterior elements. For this, I have to see the MRI to see any spinal involvement. However, this looks air lucency in the vertebrae. I can see, yes, there, madam, there is a fragment is also noted in the posterior fragment. Dislodged, displaced fragment is also noted. So this is मैडम ये भी मतलब जो फ्रैक्चर हुआ है, मतलब pneumothorax साथ में हुआ है, that air has escaped into the नहीं pneumothorax नहीं हुआ, ये वैक्यूम फिनोमेना आ रहा है। अच्छा ओके, यस मैं ये सब सोच रही थी, लेकिन वो सब इतने सारे फ्रैक्चर है ना, तो मैं उधर चलेगी कि ये उधर मैन्युब्रम पे भी लग रहा है, वो भी लग रहा है। नहीं pneumothorax यहाँ वर्टिब्रल बॉडी में नहीं जा सकता, ये वैक्यूम फिनोमेना है। क्यों होता है? डिजेनरेटिव, ये बेसिकली पोस्ट ट्रॉमेटिक कोलैप्स को डिफरेंशिएट करते हैं आप, ऑस्टियोपोरोटिक या पोस्ट ट्रॉमेटिक कोलैप्स को डिफरेंशिएट करते हैं मेटास्टेटिक डिजीज से, ठीक है। मेट्स में वैक्यूम फिनोमेना नहीं आएगा। वैक्यूम फिनोमेना क्यों होता है कि वर्टिब्रल बॉडी की जब हाइट कम होती है ना, तो कंपनसेशन के लिए वहां एयर आ जाती है, ताकि एयर जगह का क्या कहते हैं हाइट वर्टिब्रल बॉडी की मेंटेन कर ले, ठीक है। आपने ठीक बताया कि एक वेज शेप फ्रेगमेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि अलाइनमेंट आप देखिए पोस्टीरियर स्पाइनल लाइंस की डिस्टर्ब है ना, ठीक है। पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी की जो लाइन वो डिस्टर्ब है थोड़ी सी, तो आपको और क्या करना चाहिए, अगर आपको एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर लेना चाहिए ना, क्योंकि अगर ये L1 की तकरीबन वर्टिब्रल बॉडी स्ट्रक्चर तो ड्यूरिंग इंजरीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और हम प्रॉपर जो है वो रिमेनिंग विंडोज भी देख सकते हैं रूलिंग आउट अदर इंजरी या एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए। सही है, मतलब थैंक यू मैडम। डॉक्टर अंबर आप हैं मैडम? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, ये अब 2 केस आपने ले लेने। ठीक है सर, I am provided with the spot zoomed image of the right shoulder in which I can appreciate displaced mid fracture of the clavicle. I can also this is skeletally immature patient. I can also appreciate it is mildly displacing. Mildly there is dislocation at the shoulder joint. So findings are consistent with displaced right clavicular fracture. ठीक है, लंग पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? Appears unremarkable. ठीक है, ये बताया कि इमेच्योर स्केलेटन है। हाँ जी। ठीक है, बस हमने इसमें तो यही दिखाया हुआ है ना कि क्लैविकल का फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर जब भी क्लैविकल का होगा तो आपने साथ में जो विजुअलाइज लंग फील्ड है उस पर कमेंट करना है, सही है। और क्लैविकल के फ्रैक्चर में करते कुछ नहीं है, सिर्फ पोलिस लिंक अप्लाई करते हैं। जब भी आपने किसी भी फ्रैक्चर को डिस्क्राइब करना है तो ठीक है, माइल्ड, अच्छा माइल्ड का लफ्ज ना बोला करें, या डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, ठीक है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी होती है जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है ना उसके रिस्पेक्ट में इस वाले की, यानी ये डिस्प्लेस्ड है। पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टल फ्रेगमेंट डिस्प्लेस होता है, ठीक है। यानी आप उसको तकरीबन आप कह सकते हैं कि पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट है। फिर आपने बताना है कैलस फॉर्मेशन कोई नहीं है, ठीक है जी ठीक है। ये चीजें अच्छा इंप्रेशन डालती हैं। बाकी सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग अगर आपको साथ अप्रिशिएट। मैडम नासमा, जी मैडम सर, ये एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट है या पोस्टीरियर? वो पोस्टीरियर है। मैडम इसमें तो ये एंटीरियर नहीं, प्रोक्सिमल सेगमेंट के लिहाज से अगर देखें तो डिस्टल सेगमेंट एंटीरियर नहीं है मैडम? प्रॉक्सिमल सेगमेंट ये पड़ा हुआ है और ये मुझे लग रहा है कि ये पीछे जा रहा है, ये मुझे यहाँ से ये पीछे लग रहा है। अच्छा मैडम, ठीक है, ठीक। ओके, यानी हमने प्रॉक्सिमल की रिस्पेक्ट में डिस्टल की बतानी है। डिस्टल की आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी होती है, एंगुलेशन में कमेंट करना होता है, कोई पैथोलॉजिकल लियम तो नहीं वहां पड़ा हुआ ये बताना होता है, और कैलस फॉर्मेशन है कि नहीं, ये पॉइंट्स। और साथ में आपने सॉफ्ट के कमेंट करना है, और लंग का जितना फील्ड आपको नजर आ रहा है आपने बताना है कि वो क्लियर है। ये चीज भी आपकी भी ट्रॉमा। ठीक है मैडम, थैंक यू। I'm provided with the X-ray chest frontal projection of a skeletally mature patient, in which I can appreciate the. Hello. एक्सरे नहीं है। Contrast study, oral barium.
Barium swallow? Barium meal. Sorry, barium meal है. Outlining the stomach with some contrast leakage or extravasation into the left lower hemithorax. However, I cannot appreciate any abnormal bronchial tree being outlined by it. These are multiple early senses appreciated within the left hemithorax. The left hemi diaphragm is not well visualized. बिल्कुल ठीक है. और लेफ्ट लंग कैसा है? मैडम ओपेक है. हेमिथोरैक्स ओपेक है ना, ठीक है. जी. Differential would include diaphragmatic hernia or it could be ruptured diaphragm. ठीक है. नेक्स्ट इसी केस का सीटी दिखा रही हूँ. I am provided with axial and corneal reconstructions of the contrast enhanced CT, abdomen and chest spot images in which there is defect depreciated within the left posterior hemidiaphragm, causing with the herniation of the bowel segments. On the axial slices, I can see the stomach is also herniated into the left hemithorax. ठीक है. ये जो स्टमक की कंस्ट्रक्शन होती है, इस अपीयरेंस को क्या कहते हैं? Hourglass? और ग्लास अपीयरेंस है, ठीक है. जी. यही अगर लिवर जाए तो मशरूम साइन बनता है, अगर राइट हेमी डायफ्राम में इस तरह से फंस जाए, ठीक है. जी. और अगर स्टमक फंस जाए तो और ग्लास अपीयरेंस होती है, ठीक है. ठीक है. तो ये वही डायफ्राम रप्चर का केस है. मैडम लेकिन इसमें कोई ट्रॉमा का एविडेंस तो नहीं है ना? हाँ, इसमें कोई ट्रॉमा का एविडेंस नहीं लग रहा, क्योंकि डायफ्राग्मेटिक रप्चर जो होते हैं ना, वो यूजुअली डिलेड होते हैं. ठीक है. थैंक यू. मैडम ये जो येलो मार्क किया है ये डायफ्राम है? ठीक सा. ये आपने मार्क किया हुआ है. ये वाला. ये डायफ्राम ही लगता है, उसी का इसमें आ रहा है, क्योंकि और तो कोई चीज नहीं है यहाँ पे. उसी के क्रस्ट के दरमियान में आ रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन हुई भी. एक मिनट जी. ये केस सेम ये है. मैं ही ले लूं? जी जी सेम ही है, बस वही इसमें दिखाया गया है कि डिलेड इमेज आपको दिखाई गई है वेरियन मीडियन फॉलो थ्रू की, और कुछ जो है वो स्मॉल वॉवल लूप्स की ओसिफिकेशन आ रही है हेमिथोरैक्स के अंदर. मैडम जो एसोफेजियल परफोरेशन या बोर है बनता है वो भी इसके डिफरेंशियल में आ सकता है? इसी तरह है, लेकिन आप देखें कि कंट्रास्ट कहाँ है. इसोफेजियल तो हम तब कहेंगे ना अगर हमें साथ में इसोफेगस की भी कोई ओसिफिकेशन लग रही है कि ओरल कंट्रास्ट की तरह. जी ठीक है. जी ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट. डॉक्टर असलम, ये केस आप ले लें. CT chest, axial image, lung window. There is ground glass haze and reticulous interstitial thickening of the right middle lobe. Right lobe also shows mild septal thickening. In the left lung, visualized lobe also shows increased attenuation, reticulonodular shadows. This is right middle lobe. क्रेजी पेविंग पैटर्न है मैडम या कुछ और है? ये राउंडेड सी चीज नहीं लग रही आपको कोई? राउंडेड है. राइट लोब जो है ना राउंडेड हुआ है. तो और क्रेजी पेविंग ऐसा राउंडेड कब होता है? राउंडेड नमोनिया नहीं, राउंड नमूनिया तो इतना बड़ा नहीं होता. जैसे नहीं, कोई वो चीज तो को एक जगह में होता है ना. हम ये ट्रॉमा पढ़ रहे हैं ना. हाँ, ये टार्जन हुआ है उसका राइट लोब का. टॉर्जन है लंग की. जी.
टॉरियन है लंग की, और इधर देखिए ना ये जो कर्व्ड अपीयरेंस आ रही है यस कर्व्ड है, बेजल कर्व्ड है, पेडिकल कर्व्ड टार्जन है इसका, और पेडिकल इसके साथ इसमें जो है ना वो जी कंसोलिडेशन भी बन गया। हाँ, फिर जब टॉरियन होती है तो उसके बाद लंग की इंक्रीज एटेन्युएशन हो जाती है, इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग होती है और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन की तरफ इसको डिस्क्राइब कर, मतलब ये अगर टोक्स पे जैसे ये अगर आ रहा है लगी है, फिर किस तरह बताएंगे कि वेल डिफाइंड? हम बताएंगे कि देयर इसका इज एब्नॉर्मल कर्व्ड ओरिएंटेशन है पर मेन पल्मोनरी वेसल्स की, ठीक है, with increased attenuation of the surrounded lung which has assumed a rounded shape, ठीक है, और उस राउंडेड एरिया के अंदर हमें ग्राउंड ग्लास एटेन्युएशन और सेप्टल थिकनिंग एप्रिशिएट हो रही है, या हम कर्व कहेंगे या फिर वर्ल्ड अपीयरेंस कहेंगे पल्मोनरी वेसल्स की। और ये दूसरा जो है राइट, जो लेफ्ट लंग में जो आ रहा है, इसको क्या बनाएंगे? ये जो आ रहे हैं ये वाले, हाँ, ये भी है, और नीचे ये बैंड जो आ रहा है हाँ हो posteriorly सकता है पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसी तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बेजल एटेलेक्टेसिस है। ये ठीक है, ये नेक्स्ट दो केसेस हैं। असलम भाई ये भी जी, एक्स-ray chest frontal projection of skeletal immature male patient. There is evidence of ear lucency around the cardiac shadow in keeping with pneumopericardium. It is not extending above the aortic knuckle. Multiple lines seen in keeping with ICU patient. ये दूसरा पोस्ट फॉलो अप है? नहीं, ये दो डिफरेंट पेशेंट्स हैं। अच्छा, दो डिफरेंट पेशेंट्स। This patient has pneumopericardium and ठीक है, पहले वाले पेशेंट का न्यूमोपेरिकार्डियम और सेकंड क्या है? second में pneumomediastinum. Ear lucency is seen in the mediastinum above the aortic knuckle extending up to the neck. नेक और नेक में एम्फाइसीमा आ रहा है। तो ये pneumomediastinum है और ये दूसरा pneumopericardium है। तो इसके साथ एसोसिएटेड कोई फ्रैक्चर वगैरह है इसमें? फ्रैक्चर वगैरह कोई नहीं नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, आप ये बताएं कि दोनों में से जो है पेशेंट के लिए डेंजरस कौन सी कंडीशन है? डेंजरस तो न्यूमोपेरिकार्डियम है, क्योंकि कार्डियक टेम्पोनाट का खतरा होता है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए इसमें न्यूमोमेडियास्टिनम में मैडम जो है ना वो रिजॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, बिल्कुल रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है ठीक है। न्यूमोपेरिकार्डियम इमरजेंसी और न्यूमोमीडियास्टिनम सेल्फ रिजॉल्विंग भी इसके लिए कंडीशन। अर्जेंट वो करेंगे ना, वो थोरेसेंटेसिस करेंगे। जी जी ठीक है। मैडम न्यूमोपेरिकार्डियम मार्क कर देंगे प्लीज। जी एक मिनट, ये देखें। ये ट्रैक करके बता देना, जो ईयर ट्रैकिंग हो रही है इस तरह। मैं इससे बताती हूँ, ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी एयर में आउटलाइन किया हुआ है कार्डिक सिलेट को। आप इसी तरह से पेरिकार्डियम जो है ना उठा दिया है ना, इसको पेरिकार्डियम को उठा दिया है ना। जी आप बताएंगे कि एयर ल्यूसेंसी सीन आउटलाइनिंग द कार्डिक सिलेट, और इधर स्ट्रिकी, और इधर आपने बताया न्यूमोपेरिकार्डियम में कि इट्स नॉट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एओर्टिक नकल। यही होता है ना, एक एओर्टिक नकल के बियॉन्ड में न्यूमोपेरिकार्डियम एक्सटेंड करती, दूसरा कॉन्टिन्यूअस डायफ्राम साइन आता है, जो इस केस में नहीं आता। मैडम आसान है कि ये दोनों कार्डियक शेडो को कंपेयर करें ना। ये एक वाले जो नॉर्मल है उसका पेरिकार्डियम बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है ना, लिपटा हुआ है, और जिसमें न्यूमोपेरिकार्डियम है उसमें पेरिकार्डियम उठा हुआ है। ये देखो अलग है, जी 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 पहले में अलग है, दूसरे में उसके साथ चिपका हुआ है। जी ठीक इनमें है। मैम डिफरेंशिएशन पॉइंट यही था, एओर्टिक नक्कल से अबव जाने वाला और उससे नीचे जी दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो ग्रेट वेसल्स को या एओर्टिक नकल को आउटलाइन नहीं करती न्यूमोपेरिकार्डियम ना, दूसरा ये कि कार्डिक सिलेट की आउटलाइन और कॉन्टिन्यूअस डायफ्राम साइन। अच्छा मैडम, आपने ये कहा कि न्यूमोपेरिकार्डियम इज मोर डेंजरस, वो रिजॉल्व नहीं होगा।
जो निमोमीडियास्टिनम है, एक बात ये पूछनी थी, बुक में ऑक्सफोर्ड में भी लिखा हुआ था कि निमोमीडियास्टिनम कैन लीड टू निमोथोरैक्स, लेकिन निमोथोरैक्स कैन नॉट लीड टू निमोमीडियास्टिनम। ये कहीं, ये सटन में कहीं एक पॉइंट था, इसको जरा बता दें इसी हवाले से, निमोथोरैक्स में और निमोमीडियास्टिनम में। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि निमोमीडियास्टिनम किस तरह से निमोथोरैक्स को लीड करेगा, ठीक है। मतलब अच्छा। इतना तो है कि मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स को अगर वो सराउंड कर रही है एयर, और इसका मतलब है कि साथ जो है वो एयरवे को भी सराउंड करेगी, तो इसका मैं रीड करके बता दूंगी कि किस तरह से वो मतलब ट्रैक करके निमोथोरैक्स किस तरह से, यानी प्लूरल कैविटी के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से एस्टैब्लिश होगी, वो थैंक यू मैडम। ठीक है। न्यूमोपेरिकार्डियम का ये कि वो कार्डियक को कंप्रेस करेगा तो कार्डियक टेम्पोनेट हो जाता है ना उसका। निमोथोरैक्स से निमोपेरिकार्डियम हो सकती है, लेकिन निमोपेरिकार्डियम से निमोथोरैक्स नहीं हो सकता, ये लिखा हुआ है। जी नेक्स्ट केस है ये। डॉक्टर शबनम मैडम, ये आप ले लें। डॉक्टर शुमाइला, सॉरी डॉक्टर शुमाइला मैडम, ये आप ले लें। जी सर। I'm provided with XHS frontal projection of a skeletally mature male patient. Here I can appreciate that there is diffuse opacity is appreciated involving the left upper middle and left and lower lobe. And there is a shift of a slight shift of mediastinum toward the left side, and our radio opacity is appreciated along in the left paratracheal region. In the left paratracheal region एक opacity आ रही है जो कि widening कर रही है superior mediastinum की, and left लंग, लेफ्ट हेमिथोरैक्स में एक वेल लाइक कैपेसिटी है, लेकिन लेफ्ट अपर लंग का कोलैप्स तो नहीं है क्योंकि कोई ट्रेकिया के राउंड। ओके ठीक है। देयर इज एन ओपेसिटी इज एप्रिशिएटेड इन द mediastinum and causing the widening of the mediastinum, and this opacity has is medially it is merging with the aorta, and lately this it has irregular outline, and if there is any history of trauma, then and this is concerning for acute aortic rupture, which is an emergency. So further I would like to do the CT chest or CTA and urgent referral. ठीक है, so basically there is widening of superior mediastinum. You well described. There is left paratracheal opacity which is slitting the aortic knuckle. You cannot well visualize the aortic knuckle, and obscuration of aortic knuckle is a sign of aortic injury. ठीक है जी। बाकी ठीक बताया आपने, पेशेंट सुपाइन है और वेल नहीं है, और ओपेसिफिकेशन आ रही है होमोजेनस लेफ्ट साइडेड हेमिथोरैक्स की। जी मैम जो लेफ्ट हेमिथोरैक्स ओपेसिफाई हो गया, इट मींस कि वो सारा ब्लीड पड़ा हुआ है वहां पे सुपाइन पोजीशन में। हाँ जी, इट मींस कि जो है वो एक तो मीडियास्टाइनल हेमाटोमा पड़ा हुआ है जो ऑर्टिक वाइडनिंग हो रही है, दूसरा हाँ जी हीमोथोरिक्स होगा ना, जो कि पेशेंट लेटा हुआ है तो सुपाइन में सारा वेल लाइक सारी ओपेसिटी आई हुई है उसके अराउंड, या ह्यूज लंग कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हीमोथोरिक्स को होने के लिए बेसिकली एंगल ब्लंट नहीं है। हाँ मैम ये लेटा हुआ है ना, तो जरूरी तो नहीं है अगर लेटा हुआ है पेशेंट तो फिर सीपी एंगल ब्लंट आए। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन फिर हमें जो एओर्टिक नक्कल है और उसकी जो इंटरफेस है लंग की, वो सारी की सारी क्लियर नहीं नजर आनी चाहिए। इसमें फिर कुछ हमें एरेशन नजर आ रही है। इसका नेक्स्ट सीटी देखें। जी yes, I'm provided with one of the axial image of a contrast enhanced CT chest mediastinal window. Here I can appreciate that there is irregular contour of the descending thoracic aorta, with the extravasation of the contrast is appreciated within the left hemithorax, and consolidation of the left lower anterior segment of left lower lung is also appreciated.
and there is a fluid the fluid attenuation density is appreciated surrounding the um, aorta and the pulmonary trunk, which is suggestive of the uh, uh, aortic rupture with consolidation and extravasation of the contrast. ठीक है, सो बेसिकली जो हमें डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा उसका कंटूर वेल एप्रिशिएट नहीं हो रहा और वहां से एक्टिव एक्सट्रावेजेशन हो रही है कंट्रास्ट की। अच्छा आप बताएं जो एक्यूट एओर्टिक सिंड्रोम है वो आप किन किन चीजों को कहते हैं? इंट्राम्यूरल हेमाटोमा इसके अंदर होता है, और जो अल्सर होता है एओर्टिक और एओर्टिक अल्सर और जी एथेरोस्क्लेरोटिक अल्सर एंड एओर्टिक जो है ये लीक जो रप्चर या डायसेक्शन जी, इन तीनों को। बाकी ये कि ये तो एक्यूट इमरजेंसी है, तो फिर इसमें तो हम फॉरेन इंटरवेंशन जो है इसको रेफर करेंगे, पेशेंट अर्जेंट रेफर करेंगे इसको। डॉक्टर खदीजा आरफ मैडम ये केस ले लें। I'm provided with HRCT chest image of patient axial slice. I can appreciate that there is a breach in the posterior wall of the trachea with some surrounding pneumomediastinum. The visualized lung fields are clear. Tracheal rupture. ठीक है, ट्रेकियल इंजरी है और साथ मीडियास्टाइनम हो रही है। बिल्कुल ऐसा मेरा एग्जाम केस था और प्लेन एचआरसीटी का इमेज था, बहुत छोटे छोटे इमेजेस थे और उस पे इस तरह से नजर आ रहा था। बस हिस्ट्री उन्होंने ये बताई थी कि पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो इंट्रैक्टेबल कफ की है और बिल्कुल प्लेन इमेज था एचआरसीटी का, सिर्फ और सिर्फ लंग विंडो दिखाई हुई थी जिसपे ये अप्रिशिएट हो रही थी लिप्सेंसीज। मैडम ये आपका नेक्स्ट केस है। X-ray chest frontal projection of a skeletal immature patient. I can appreciate that there is a large lucency occupying right hemithorax with air fluid level. There's underlying collapse of the lung with mediastinal shift to the contralateral side. There is an evidence of tension pneumothorax is developing. I would immediately inform the referring clinician for this. The left lung field is normal. I cannot appreciate, I'm looking for evidence of trauma. I cannot appreciate lower ribs. Is there any history of trauma? Yes, there is history of trauma. Most likely there's a fracture of the rib which is causing the hydropneumothorax of the right side. Which rib? Sorry? Which rib? Can you appreciate any fracture? Posterior rib, seventh rib, posterior seventh rib. अच्छा ये falling lung sign है, ठीक है, there's fracture of the falling lung sign है और साथ hydropneumothorax develop हुआ है, right side. ठीक है, there's fracture of the bronchus. मैडम आसमा, मैडम नासमा जी मैडम, रीप का आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रैक्चर हम कहाँ पे देखेंगे मोस्ट लाइकली? एंगल ऑफ रीप पे, ये जो घूम के आ रही है ना, ये तो आपने इस मार्जिन के अलोंग देखना है। अगर आपको कहीं ऑब्वियस नहीं नजर आ रहा तो इस मार्जिन के अलोंग जहाँ से ये रोटेट होके आ रही है, पॉइंटर नजर आ रहा है? जी आपका कर्सर नजर आ रहा है मुझे। कर्सर नजर आ रहा है जी, ये आपने इस मार्जिन के अलोंग देखना है। ओके डॉक्टर नस्मा, आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से एग्जाम के हिसाब से? हाँ, इसमें आपने ये बताना है कि जो है राइट साइड हेमिथोरैक्स अपीयर हाइपरट्यूसिव, ठीक है, there is air fluid level and collapse from is detected towards the higher, and I cannot appreciate significant widening of the intercostal spaces, ठीक है। however slight जो है वो deviation नजर आ रही है आपको कार्डियो मीडियस्टाइनम की towards the contralateral side। टेंशन pneumothorax बेसिकली नहीं है, राइट साइडेड हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स है। सो एविडेंस ऑफ ट्रॉमा मुझे इस फिल्म के ऊपर अप्रिशिएट नहीं हो रही है। आई एम लुकिंग फॉर अ फॉरेन बॉडी, आई एम लुकिंग फॉर एनी ऑब्वियस रिब फ्रैक्चर, ठीक है। ये सारी बातें आपने बोलनी है कि आप कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ट्रालेटरल साइड के ऊपर सिर्फ एंगल ठीक लग रहा है, उस पर कोई इस तरह की आपको अपेयरेंस नहीं लग रही। ब्रोंकस की जहाँ पे फ्रैक्चर है वो भी ट्रेस नहीं होगा, वो शिफ्ट की वजह से, फॉलन लंग की वजह से हम डिटरमिन कर देंगे?
ब्रोंकस का फ्रैक्चर बेसिकली आपको सीटी पर ट्रेस होगा, एक्सरे ओके। तो आप उसका जो है वो एविडेंस नहीं बता सकते। मैडम इसमें जो पैराट्रेकियल ल्यूसेंसीज है लेफ्ट पैराट्रेकियल में वो हाँ उसमें ये लग रहा है कि नीमोमीडियास्टाइनम का भी साथ एविडेंस है। इसको आप टेंशन क्यों नहीं कह रही मैडम, शिफ्ट तो हो रहा है ना। साथ प्रोलिफेरन भी आ रही है ना। और मैंने ये नहीं पढ़ा कि हाइड्रोनीमोथोरैक्स में भी टेंशन नीमोथोरैक्स हो। होता है मैडम, उसको टेंशन हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ इंटरकॉस्टल स्पेसेस तो बहुत मैडम सिग्निफिकेंट। जब मीडियास्टम और ट्रेकिया शिफ्ट हो गया तो दैट इज टेंशन। ठीक है, तो ट्रेकिया यहाँ सेंट्रल है। चला गया, शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द लेफ्ट, शिफ्ट हो गया, ये हार्ट शेडो भी शिफ्ट हो गया और लंग भी कोलैप्स कर गया। लंग कोलैप्स कर गया ना, लेकिन देखिए ट्रेकिया यहाँ आ रहा है। और हर एक लंग कोलैप्स को जो है ना वो पालन लंग वो तो नहीं बनाते ना। हाँ, हर एक लंग कोलैप्स को तो नहीं हम फाला लंग बनाते या इस तरह से करते, लेकिन ये है कि पालन लंग ज्यादातर ये जो पेरिफेरल पे जो लंग कोलैप्स होते हैं ना और वो पेरिफेरली प्लेस होता है तो उसको पालन लंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये तो जब कोलैप्स होता है जो प्लूरा में हवा आ जाती है तो जो लंग कोलैप्स होके हाइलम की तरफ रिट्रैक्ट कर जाता है तो इसको कोलैप्स लंग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज में मुझे देखिए ना, ट्रेकिया सेंट्रल लग रहा है और जो हार्ट है उसका 2/3 ही है लेफ्ट साइड पे, 1/3 फिर थोड़ा राइट साइड पे अप्रिशिएट हो रहा है। मैडम ये जो ईयर ल्यूसेंसी है ना ये जो मिडल है ना हम्म। मीडियास्टम से चला गया, ये अच्छा, लेफ्ट की तरफ जो है ना मतलब देखो। आप उसको, आपके ओपिनियन में आप टेंशन हाइड्रोनीमोथोरैक्स को कहना चाह रहे हैं? आज बिल्कुल मैडम, ये जो लेफ्ट लंग का वॉल्यूम है ना उसको भी देखो रिड्यूस हो रहा है ना, हाँ, लेफ्ट लंग का वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है और उसमें ये है। कंप्रेस हो रहा है ना, कंप्रेशन की वजह से रिड्यूस हो रहा है ना। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप वो ना बनाओ तो फिर तो कंपेंसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द लेफ्ट लंग होना चाहिए। हाँ, ये अच्छा, ये वैलिड पॉइंट है कि वॉल्यूम रिडक्शन है लेफ्ट साइड पे, कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, तो फिर इसका आप टेंशन हाइड्रोनीमोथोरैक्स लेवल कर सकते हैं। इसमें तो हम ड्रेन लाजमी डालेंगे, चेस्ट ड्रेन। जी जी। नेक्स्ट। डॉक्टर बकार। X-ray chest X-ray chest frontal projection of patient is being provided, in which I can appreciate that there is a complete right lung opacification um, with ipsilateral tracheal shift, Um, I can trace left bronchus up to the hilum, but the right main stem bronchus is not traceable, and there seems to be an opacity within the lumen. So most likely it is a case of foreign body inhalation or any mass in the right lung leading to right lung collapse. मल्टीपल ओपेसिटीज है ना, स्टेपलर पिंस की तरह की है। मैम मल्टीपल, और ये रिब्स देखें, कुछ रिब्स भी मिसिंग है ना। मैडम वो सारे ही हेजी है, वाइट तो ना अच्छा ये जो रेड एरो है ये यहाँ पे गैप ज्यादा, ठीक है, जी, ये रिब्स स्पेस ज्यादा मिसिंग है। है। तो मैम फिर स्टेपलर पिंस लगाई हुई है ना ब्रोंकस को, क्यों लगाई है? मैम कोई पोस्ट प्रोसीजरल है ये लंग हाँ जी, पोस्ट निमोनेक्टमी है। निमोनेक्टमी। जी, निमोनेक्टमी हुई है पेशेंट की, हम कहेंगे कि ओपेसिफिकेशन है राइट साइड एंटायर हेमिथोरैक्स की विद वॉल्यूम रिडक्शन, देयर इज एविडेंस ऑफ सर्जरी इन फॉर्म ऑफ मिसिंग ribs and surgical staples are noted in the right mainstem bronchus, and there is deviation of trachea towards the ipsilateral side. The contralateral lung gets hyperinflated और slight herniation है lung की towards the contralateral side, और जो लेफ्ट लंग फीड है इट अपीयर्स अनरिमार्केबल। सो पोस्ट निमोनेक्टमी है ये पेशेंट, और
बाकी सारी अपीयरेंस रेलेवेंट टू द पोस्ट ऑफ फाइंडिंग्स हैं। ठीक। इसमें मैम एयर फ्लूइड लेवल के ऊपर भी हमने कमेंट करना होगा ना कि राइट साइड पे हमें कोई एयर फ्लूइड लेवल नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, हम बता सकते हैं कि अप्रोच निमोनेक्टमी ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला तो नहीं बन गया। जी ये जी ये डिस्क्राइब करना मैम। जी जी ठीक। serial imaging of X-ray chest frontal projection of a patient, in which I can appreciate post-op days. In first image, I can appreciate an air fluid level, which is gradually decreasing. जी जी मैडम और इसमें क्या बताएंगे, मतलब एयर फ्लूइड लेवल का ही है। और हाँ जी, लेवल जब ग्रेजुअली इंक्रीज करता है लेवल ग्रेजुअली, या डिक्रीज होना चाहिए? मैडम एयर फ्लूइड लेवल, ये तो फ्लूइड आ जाना चाहिए ना ज्यादा। फ्लूइड ज्यादा आना चाहिए, एयर ज्यादा आ रही है। जी, ये एयर ज्यादा आ रही है तो ये क्या तो मैम होगा? देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला। जी, फिस्टुला डेवलप हो गया। मैम नेक्स्ट इसमें वही है, चेस्ट ट्यूब या ड्रेन जो है वो फिर डालेंगे अर्जेंटली। इसकी कंफर्मेशन के लिए भी कोई स्टडी होती है? सीटी करा के हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन देख सकते हैं ना ब्रोंकस की। मैम जी मैम सिटी है। डॉक्टर नासमा, एक डाई का भी तो टेस्ट होता है कुछ, तो उसमें देखते हैं कि वो डाई फिर वो फ्लूइड में जाता है और कलरिंग हाँ, देता है, वो उसको क्या कहते हैं? उस तरह का भी कुछ मेरे जहन में आ रहा है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता। लेकिन हम करते हैं इसमें, जब जाके वो जब इकट्ठा होना स्टार्ट होता है तो कंफर्मेशन हो जाती है। अगर किसी को इस प्रोसीजर का नाम आता है तो बता दें। वो मुझे भी एक्चुअली दिमाग में नहीं आ रहा था, ये मेरे दिमाग में आ गया क्या ये ऐसा कोई टेस्ट होता है, मगर वो नाम मुझे भी नहीं आ रहा था, मैंने सोचा पूछ लूं। मुझे आइडिया नहीं है कि ब्रोंकोग्राफी इस पे एप्लीकेबल होगा या नहीं, इसको भी देख के बताएंगे। मिथिलीन ब्लू डाई होता है जो डेनर्ड में लिखा हुआ है, और जीनोन भी कर सकते हैं हाँ, तो वो जीनोन एयर करिए। हाँ, जीनोन करते हैं, वो आप रेजिडुअल एयर देखते हैं उसमें। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट केस देखिए। मैडम प्रीवियस क्वेश्चन था, कंफ्यूजन थी जी, कि मैम उसमें एयर फ्लूइड लेवल वो बढ़ रहा था या कम हो रहा था, मतलब या रेशो की सूरत में उसको बता दें किस तरह से कहें। इसमें नॉर्मली जो निमोनेक्टमी स्पेस है ना, उसमें सारा का सारा फ्लूइड आ जाना चाहिए जैसे जैसे डेज इंक्रीज करते हैं। जी अगर मैडम। एयर ज्यादा आ रही है तो लेवल बढ़ रहा है और फ्लूइड कम होता जा रहा है, तो ये उल्टा हो रहा है ना। ठीक है नॉर्मली मैडम। निमोनेक्टमी स्पेस को पूरा का पूरा जो है वो कुछ दिनों के बाद फ्लूइड से बंद हो जाना चाहिए। जी मैडम। डॉक्टर नासमा, इसमें साइनोग्राफी और ब्रोंकोग्राफी सटन में लिखा हुआ है, इसमें करते कंफर्मेशन के लिए पिस्टोला हाँ, के। ब्रोंकोग्राफी लेकिन ना बहुत पुराना प्रोसीजर है, वो ऑब्सोलीट हो गया। जिन्होंने जीनोन वाला बताया ना, वो कंफर्मेटरी होता है इसमें। ठीक है। ये वाला नेक्स्ट। मैडम ये जीनोन ये न्यूक्लियर स्कैन है मैम? हाँ जी, जो वीक्यू स्कैन है। ओके, डॉक्टर शिबका मैडम क्या केस ले लें? जी डॉक्टर शिबका जी सर, अस्सलाम वालेकुम। केस ले लें आई एम मैडम। प्रोवाइडेड विद द चेस्ट एक्स। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैडम। हेलो। जी जी आवाज आ रही है। आई एम प्रोवाइडेड विद द चेस्ट एक्स फ्रंटल प्रोजेक्शन frontal projection of a skeletally mature patient in which I can appreciate there is a homogeneous opacity, broad base opacity, peripherally placed in the right hemithorax, which is making obtuse angle with the pleura, suggesting it to be extra pulmonary opacity. The fissure, the horizontal fissure appears to be thickened. Also multiple soft tissue opacities also identified in the bilateral lung fields.
multiple few cystic lucencies are noted in the right upper zone, along with bilateral inhomogeneous opacification of the bilateral upper zones. The trachea is central, however, there is an opacity in the distal portion of the trachea above the carina, नहीं बस उसे causing. ना डिस्क्राइब करें, इसी को डिस्क्राइब करें कि कैसी है, शेप कैसी है, एंगल कैसा है चेस्ट वॉल के साथ. Okay, and no calcification is seen within it. No, okay, making an obtuse angle with the pleura. Bilateral CP angles are unremarkable. The right hemidiaphragm is elevated. Coming on to the axial section, CT scan, chest mediastinal window, I can appreciate that there is pleural effusion, loculated pleural effusion on the right side with a few air specks and underlying consolidation of the lung. ठीक है, क्या डायग्नोसिस है आपका? लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन है और ये पोस्ट मेटासिस पे स्प्लिट प्लूरा साइन भी आ रहा है. एम्पाइमा थोरेसिस. ठीक है, और प्लेन रेडियोग्राफ प्लेन रेडियोग्राफ पे प्लूरल बेस्ड ओपेसिटी में यही नंबर 1 पे ये एम्पाइमा, लॉक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन और मेसोथेलियोमा या फिर प्लूरल मेट्स लिम्फोमा, एस्बेस्टोसिस. रेडियोग्राफ पे इसका रग साइन आ रहा है ना, एलिवेट किया हुआ होता है जिस तरह. जी. और जो कंट्रास्टिंग है सीटी उस पे स्प्लिट प्लूरल साइन हो रहा है. दोनों ही डायग्नोस्टिक ठीक है. चेस्ट एक्सरे के ऊपर तो आप प्लूरल बेस्ड कोई भी मैच डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन साथ ऑल्दो ये एक्सरे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपको साथ डिस्ट्रक्शन इसकी मेंशन करनी चाहिए. कोई एक्स्ट्रा थोरेसिक कंपोनेंट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी डीडी में एम्पाइमेनेसिस भी आएगा. और जो सिटी है उस पे तो कोई डायग्नोस्टिक स्प्लिट प्लूरल साइन आ रहा है. और जो ये आ रही है लॉक्यूलेटेड प्लूरल जिसको उसके अंदर स्पेक्स ऑफ एयर भी आ रही हैं. ठीक है जी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जिसने डिस्क्राइब करना है नेक्स्ट केस. मैं करती हूँ. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर नहीं, ये आप बता दें, सिर्फ कैथेटर जी स्पॉट डायग्नोसिस ही है. ओके मैडम जो फर्स्ट वाला है वो सीवीपी लाइन है जो कि अपनी जगह पे है मैडम, वेल प्लेस्ड है. तो जी जो सेकंड वाला है मैडम उसमें जो है वो इसमें ये मैडम मिसप्लेस्ड है. इसमें वो नॉर्मल मुझे नहीं मिल रहा जहाँ उसको होना चाहिए. राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना के वहाँ के जंक्शन के ऊपर मैडम जो होता है, लेकिन ये मैडम ये तो राइट पल्मोनरी आर्टरी में चली गई है. जी पल्मोनरी आर्टरी का ही कैथेटर है. ओके, तो मैडम ये फिर नॉर्मली है मैडम अपनी जगह के ऊपर राइट पल्मोनरी आर्टरी में. स्वानगैंस कैथेटर है ये. स्वानगैंस, ठीक है मैडम. और जो मैडम लास्ट वाला है मैडम वो एनजी ट्यूब है और वो अपनी जगह पे मैडम वेल प्लेस्ड है मैम. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट भी इसी तरह की स्लाइड है. जी मैम. जी मैडम जो मैडम जो फर्स्ट वाला है वो है सब क्लेवियन मैडम है, कैथेटर है मैडम. ये फर्स्ट वाला ये पड़ा हुआ है. जी मैडम जी. ये इसका एक होल भी है. यस, इसका सम पार्ट स्किन में है और थोड़ा पार्ट मैडम सुपरफिशियली है. चेस्ट ड्रेन है ना. चेस्ट ड्रेन है और वेल प्लेस्ड है. ओके मैडम, ठीक है मैम. टिप टुवर्ड्स इसकी मीडियास्टाइनम है ना. जी मैडम. जी. नेक्स्ट ठीक. सेकंड नंबर. इसका मैडम मुझे नाम नहीं याद आ रहा. इसका पेसमेकर है 2 वायर. 2 वायर्स है, ठीक है मैम. ये पेसमेकर है मैडम. एक वायर कॉर्निक साइनस के अंदर है और एक वायर इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल में.
एलवी में ही होती है ना? राइट वेंट्रिकल में मैडम, राइट वेंट्रिकल। राइट अगर 3 वाला होता ना तो फिर हाँ, वो 3rd वाला फिर जाके ना वो लेफ्ट में चला जाता। एलवी में होती, हाँ। एक इसका कॉर्नर पहला में जो होता है वो अगर सिंगल हो, बिल्कुल सिंगल हो, तो फिर कॉर्नरी साइनस में। तो इसे नोट के साथ डालते हैं ना। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में नहीं होता डुअल जो चैम्बर है, राइट एट्रियम में नहीं और नहीं, राइट कॉर्नरी वेंट्रिकल? साइनस में। ओके। और मैडम जो लास्ट वाला है ये थोड़ी ब्लड सी है मैडम फिल्म, ठीक है, इसमें इसमें मल्टीपल लगी हुई है, ईसीजी लीड्स हैं, और ये एक पड़ा हुआ है, ये बता दें क्या है? एओर्टिक नकल में है। इंट्राएओर्टिक बैलून पंप है ये। जो पेशेंट बहुत ज्यादा कार्डियोजेनिक शॉक में होता है और बिल्कुल उसका बीपी ड्रॉप कर रहा होता है, फिर ये डालते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। ये इसका लास्ट वाले का डॉक्टर ये नासमा प्लीज नाम बताइएगा दोबारा। एओर्टिक बैलून पंप है ये, इंट्राएओर्टिक बैलून पंप। फिर ये एक और आपको ओके मैडम, ये जो है ये एक तो ईसीजी लीड्स है और दूसरा जो एनजी ट्यूब है वो राइट लोअर लोब ब्रोंकस में मैम। ईटीटी, एंडोट्रेकियल। सॉरी, ईटीटी मैडम। तो मैडम इसमें जो है, इसमें जो अपर लोब का साथ में कोलैप्स हुआ हुआ है, इसकी रीएडजस्टमेंट करेंगे मैडम। ठीक है, और ये जो लेफ्ट हैंड क्या हुआ है? लेफ्ट वाला जो है मैडम वो सारा वाइट हेमीथोरक्स है, वो भी इसी वजह से है कि उस तरफ मैडम एयर नहीं जा रही, तो इसकी रीएडजस्टमेंट इसकी करेंगे मैम। लॉस ऑफ एरिएशन। लेफ्ट की होल ब्रोंकस ब्लॉक है और मैडम राइट की अपर ब्रोंकस मैडम इसने ब्लॉक कर दी है। मतलब उधर एनजी ट्यूब की मैल प्लेसमेंट है ना, ठीक है। यस यस, एंडोट्रेकियल ट्यूब की माल ठीक है, प्लेसमेंट। इसकी नॉर्मल प्लेसमेंट क्या होती है? मैडम क्राइना के 1.5 सेंटीमीटर अभाव होगी मैम। आई थिंक 2 सेंटीमीटर अबव है, और बच्चों में ये जो क्लैविकल्स नजर आ रही है इससे उसके अबव ऊपर होगी, उसके अभाव होगी जी। मार्जिन से ऊपर। मैडम ये एनजी एनजी क्यों नहीं है? इसको देख के पता तो नहीं चलता ईटीटी है या एनजी है? हाँ जी, बिल्कुल नैरो सी है, लेकिन इतनी छोटी, ये भी हो सकता है किसी ने एनजी डाल दी हो इधर, लेकिन जो देखिए ना कि अगला नहीं मैडम, एनजी लॉस ऑफ ट्यूब जो होती है वेंटिलेशन। ना, एनजी ट्यूब जो होती है ना वो सिंगल ल्यूमन होती है और स्लिट साइज होती है, और ये जो एंडोट्रेकियल होती है ना इसके दोनों वाल नजर आते हैं। आप इसको देखो, इसका ये जो एक वाल भी नजर आ रहा है और दूसरा भी, और ये वाइड बोर होती है। अच्छा, ये इतना ना, दूसरा ये वाली लाइन ना मुझे इतनी ज्यादा हाँ ये नहीं वाइड, होती। ये इसका देखो ये वाइड ल्यूमन है ना। एनजी ट्यूब इनडायरेक्ट तो एविडेंस आपको ये भी एनजी लग रहा है जो लॉस ऑफ एरिएशन है, यानी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी हुई है, वरना दूसरी साइड के लंग की और इसके राइट अपर लोब की लॉस ऑफ एरिएशन ना होती। एनजी ट्यूब का ल्यूमन स्मॉल होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट। और डॉक्टर नसमा, मेरे ख्याल से ये जो ईटीटी होती है ये किराना से 5 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए, 2 5 या सेंटीमीटर 2.5? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। 5 सेंटीमीटर 5 होते हैं, वो सेंटीमीटर। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का फर्क होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट केस। मैम इसमें जो चेस्ट एक्सरे है उसमें मैडम मीडियास्टिनल की वाइडनिंग आ रही है। ठीक है, जी। और और बाकी इसमें बायलैटरल लंग्स और सीपी एंगल तो नॉर्मल है मैडम, कार्डियक साइज भी ठीक है। और लाइनें सीधे ऊपर जा रही हैं। हाँ जी मैडम, ये मैडम नीमोमीडियास्टिनम नहीं, है मैडम। पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन थेरेपी है। पोस्ट रेडिएशन निमोनाइटिस मैडम। ये जीटीबी पोस्ट रेडिएशन क्या है ये? मैडम ये सारा फाइब्रोसिस हुई हुई है मैम। हाँ, इस टाइम में फाइब्रोसिस हो गया है। ठीक है, जी मैडम, तो ये पोस्ट रेडिएशन ये मीडियास्टिनम की फाइब्रोसिस है मैम। ठीक है। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इसके फिर? मैडम इसमें जितनी भी जो मेजर वेसल्स हैं उनकी नर्विंग हो सकती है, जी, और जो ट्रेकिया की नर्विंग हो सकती है मैम। जी। नेक्स्ट। जी मैडम, नेक्स्ट जो है चेस्ट एक्सरे है, उसके ऊपर मैडम एक रेडियो ओपेसिटी ट्रायंगुलर शेप है लेफ्ट लोअर जोन में मैम।
जो कि और दूसरा मैडम जो CTPA है उसके ऊपर एम्बोलिज्म है मैडम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये हैम्पटन सम साइन है मैडम पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। और ये जो फिलिंग डिफेक्ट आ रहा है मैडम लेफ्ट पल्मोनरी वेसल में। जी जी, ये कौन सा साइन है? मैडम ये सेटल ये Followment sign, sir. पोलोमेंट साइन। जो राउंडेड वाला है ये पोलोमेंट साइन है, और ये वाला कौन सा साइन है? रील ट्रैक। जी, ये दोबारा रिपीट कर दें। पोलो, ये जो गोल है ना, मतलब थ्रोम्बस जी इधर आ मैम, रहा है, ये उसके तो सराउंडिंग पोलोमेंट। में ये पोलोमेंट हो गया। और ये रेलवे ट्रैक या ट्रैम ट्रैक साइन है। सेंटर में एम्बुलेंस पड़ा हुआ है और दोनों साइड्स के ऊपर उसके कंट्रास्ट आ रहा है। ठीक है। ओके मैडम, इसके जी बहुत मैडम। सारे साइंस होते हैं कि वेस्टर्न मार्क साइन है, नक्कल साइन है, हैम्पटन हम्प है, पोलोमेंट साइन है, और ये एक और भी इसके मतलब साइंस के काफी सारे नाम हैं, कुछ नए भी जी हैं। पालस, एक पालस साइन होता है जी हाँ मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। चैंग साइन होता है मैम। हाँ जी, डिफरेंट है इसके, देखिए मोटे मोटे जी। नहीं है कॉमन, इनके नाम याद कर लीजिएगा। और CTPA का प्रोसीजर हम क्लास 1 में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डॉक्टर आयशा मैडम आप ले लें। And provided with the first X-ray of the frontal projection, X-ray of leg, frontal projection of mature skeleton, in which I can see there is the fracture of the shaft of the tibia and fibula is seen, and in the fibula, the fracture of the fibula is displaced. The proximal segment is displaced anteriorly. And however, the tibial fracture is not displaced. I can see the fat lucencies around the tibia, and on the chest on the CT chest coronal deformity image lung window, I can see there are opacities are noted in the upper, both right and left upper lobes of the lung, and also periphery. मैडम ये दोनों एक ही बंदे के हैं ना? हाँ जी, सेम पेशेंट है। तो thinking about this the fracture of the bones leading to the fat embolism, and that fat embolism leads to these pulmonary opacities. So we have to rule out this and हाँ, ठीक है। फैट embolism का तो नहीं है मैडम ये? हाँ जी हाँ जी, फैट एम्बोलिज्म का ही केस है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें फैट एम्बोलिज्म में? मैडम ये माइक्रो जो बोन में से वो लिपिड फैट ग्लोब्यूल्स रिलीज होते हैं, एंड दे आर टेकन इनटू द सर्कुलेशन, और वहां पे ये जो है ओपेसिटीज करेंगी हमें नजर आएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें 3 अच्छा, इस पैटर्न। केस को आगे कैसे प्रोसीड करते हैं फिर? ग्राउंड ग्लास मैं एक मिनट उसके पैटर्न्स आपको बता दूं। इसमें पैटर्न्स आते हैं आपके पास ना, ग्राउंड ग्लास ज्योग्राफिकल अपीयरेंस हो जाती है, इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग आ सकती है, और आपको फिलिंग डिफेक्ट्स भी अप्रिशिएट हो सकते हैं। लेकिन जब आप फिलिंग डिफेक्ट देखते हैं CT के ऊपर और आप डेंसिटी मेजर करते हैं, तो वो डेंसिटी फैट की आ सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है क्योंकि जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देते हैं, और इसकी वजह से ना पेशेंट की शॉक में जाने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप पेशेंट को सिम्टोमेटिक ही मैनेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको डिसॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं ले सकते, तो इसमें सही। पेशेंट की बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट केस है। I'm provided with the chest X-ray, frontal projection, mature skeleton, and the multiple leads showing the patient in ICU. I can see there is a ETT apart from chest leads. I can see there is a subclavian, peripheral subclavian and catheter which is misplaced instead of and cavoatrial junction. कैथेटर इस पे बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, बस आप जो लंग्स में आ रही हैं ओपेसिटीज उसको डिस्क्राइब कर दें कि किस तरह I की। can see there are some multiple opacities, fluffy opacities distributed randomly in all the right and left whole lungs, and centrally and periphery.
And however, the cardiac silhouette is normal. Both CP angles are acute with no abnormality seen under the diaphragm. I cannot appreciate any bony fracture or sclerotic or lytic lesion. On the basis of this multiple opacities dispersed, ये मैडम ये alveolar microlithiasis का केस है? नहीं ये बिल्कुल multiple opacities। देखिए कि मल्टीपल ओपेसिटीज किस तरह की है, फ्लफी आ रही है ना, फ्लफी आ रही है जी, फ्लफी है, कोई जोनल प्रेडिलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं लग रही है आपको, कॉन्फ्लुएंट लग रही है, कोई एयर ब्रोंकोग्राम एप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं। तो एल्वेलर माइक्रोलिथियासिस में तो आपको हाई डेंसिटी आती है और वो तो मिलरी शेडोइंग होती है, सही, ठीक है, उसमें कार्डिक बॉर्डर क्लियर नहीं होते हैं। ओके, और इसमें एयर ब्रोंकोग्राम्स भी एप्रिशिएट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एआरडीएस का केस है। एआरडीएस की 3 स्टेजेस होती हैं, एक में जिसमें पैची एल्वेलर इंफिल्ट्रेट्स आते हैं, सेकंड नंबर पे कंसोलिडेशन बनती है और थर्ड पे फाइब्रोसिस हो जाता है। इसके डेज होते हैं ना कुछ, जी जी जी, 24 आवर्स है, फिर 3 to 7 डेज है, फिर उसके बाद 7 to 14 है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एआरडीएस और पल्मोनरी एडिमा के कुछ डिफरेंशियल्स उसने बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आप एआरडीएस का केस देखें तो एयर ब्रोंकोग्राम्स नहीं होंगे और पल्मोनरी एडिमा के केस में एयर ब्रोंकोग्राम्स आ सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा में बाइलेटरल पेरीहाइलर ओपेसिटीज आती हैं, कार्डिक साइज भी एनलार्ज हो सकता है और बैटरिंग अपीयरेंस जो क्लासिकल है। और फिर आप डायूरेटिक थेरेपी देके देखते हैं, जो एआरडीएस का केस है वो रिजॉल्व नहीं होगा और पल्मोनरी एडिमा सेटल हो जाएगा, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा के हमने देखे कुछ सीक्वेंशियल जो दिखा रहे होते हैं, एक दफा बहुत एडिमा है फिर दिखाया उसमें तो एक्सरे नियर नॉर्मल होता है, ठीक है। सही, ये लास्ट आई थी मिसेलेनियस चेस्ट कंडीशन की। अब आपके 2 लेक्चर्स चेस्ट के रह गए हैं। उन 2 लेक्चर्स के बाद जो रिमेनिंग केसेस हैं, मेरी जो उस दिन डिस्कस की थी हमने प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह उसके रिमेनिंग केसेस डिस्कस करेंगे, फिर चेस्ट खत्म हो जाएगा। चेस्ट से रिलेटेड कोई अगर प्रेजेंटेशन देना चाहता है जैसे सेगमेंटल लगे एनाटॉमी वगैरह की, तो वो जो रिमेनिंग डेज होंगे उसमें लेके फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से अपना एमएस के स्टार्ट करेंगे। जी जज़ाकल्लाह मैडम नाज़मा, एक्सीलेंट क्लास मैडम, वेरी नाइस मैम। थैंक यू एवरीवन, ओके जी मैम, जज़ाकल्लाह मैडम, जज़ाकल्लाह नईम भाई, जज़ाकल्लाह असलम भाई, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। थैंक यू डियर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू डियर।